Messiah's bread. I will talk about Messiah's bread now. और इसीलिए वो मसीहा की जो रोटी थी उन्होंने ऐसे साइड में, Now what is this Messiah's bread? और अभी मसीहा की रोटी क्या है? This is the prophetical word that the Jewish custom, always they kept the top bread as a Messiah's bread. और ये भविष्यवाणी का शब्द है, यहूदियों की परंपरा के अनुसार सबसे पहली रोटी को मसीहा की रोटी के रूप So में when रखते they थे। keep aside this bread, इसका मतलब ये रोटी जब वो लोग एक जगह रख now देते outside the temple they have to go, और मंदिर के बाहर उन्हें जाना पड़ता था, and the priest has to go, और वहाँ याजक को जाना पड़ता and था, he has to burn that bread और वहाँ उस रोटी को जाके उसे जलाना पड़ता था, till it becomes और ashes, जब तक वो सारे भूसा न बन till it जाए, becomes ashes burning with fire. और जब तक वो जलते जलते राख न बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Bible says पवित्र शास्त्र ये कहता है, Jesus, the Son of the living God, यीशु जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, one day एक दिन he will be outside the temple. वो मंदिर के बाहर होगा, One who has to sit on the tabernacles, और वो जो सारे भवन के ऊपर पवित्र शास्त्र one who has to sit on पे the बैठना throne, चाहिए, वो जो सिंहासन पे बैठना he चाहिए, will be burned in the anger of the Almighty Father. वो सर्वशक्तिमान पिता के क्रोध में जलेगा, He will be burned with ashes. और सारा जब तक राख न हो जाए He तब will तक become जलेगा, powder और ऐसे वो पाउडर हो with the जाएगा anger of the Father. पिता के क्रोध से, He took the sin of the whole world upon him. क्योंकि सारे संसार का पाप उसे अपने ऊपर ले लिया। That was a prophetical utterance that God gave to Moses. Keep the top bread aside. It is called Messiah's bread. For your sin and my sin, he will be burned in the anger of God. और ये भविष्यवाणी का शब्द परमेश्वर ने मूसा को दिया था कि पहली रोटी मसीहा के रूप के रोटी में आप अलग रखो, क्योंकि वो आपके और मेरे सारे संसार के पापों के लिए जलेगा। Hallelujah. हालेलुया। That's why when Jesus took the bread, इसलिए जब यीशु ने रोटी को लिया, he broke it. उसे तोड़ा, He saw he was burning in the anger of God. और उसने देखा अपने आप को कैसे परमेश्वर के क्रोध में वो जल रहा He saw है, himself into ashes. उसने देखा कैसे वो राख बन रहा He है, saw the anger of God coming upon him and make him into pieces and ashes. और परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर आते हुए उसने देखा कि कैसे वो राख और टुकड़े टुकड़े बन रहा है। The Bible says पवित्र शास्त्र ये कहता है, he did not know Jesus taking the time. Peter did not know he was taking the time to break the bread. He was thinking about himself. और पतरस नहीं जानता था कि क्यों यीशु समय ले रहा है रोटी तोड़ने के लिए, क्योंकि यीशु अपने आप के बारे में वहाँ स्मरण कर रहे For हैं। the centuries they kept the bread aside. बहुत सारी सदियों से रोटी वहीं पे उन्होंने अलग For the रखी थी। centuries they kept aside. बहुत सारी सदियां Centuries, बहुत सारी सदियां उन्होंने वैसे वो रोटी को अलग रखी थी, It was almost 400 years. और 400 साल For the centuries सारी सदियां they kept the bread aside all the time. When they come to Shabbat, the top bread is kept aside and say, "This is Messiah's bread." जब भी सबात के दिन आते थे हमेशा वो पहली रोटी को अलग किया रखते थे और कहते थे कि ये मसीहा की रोटी है, Because one day क्योंकि एक दिन this Messiah यही मसीहा is the bread of life from heaven. जो जीवन की रोटी है स्वर्ग से The उतरती Bible हुई। says पवित्र शास्त्र कहता है, Father gave the manna from heaven to the Israelites. और इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना They ate the दिया manna and they died in the wilderness. और मन्ना खा के जंगल में ही वो मर But I गए, am going to send the bread of life. लेकिन जीवन की रोटी को मैं भेजने वाला Those who हूँ। eat this bread, जो इस रोटी को खाएगा they shall inherit the life. They shall not die. वो जीवन को प्राप्त करेगा, कभी मरेगा नहीं, Eternally they will become like God. They will live with God. और अनादि काल के लिए परमेश्वर के समान बन जाएगा और प्रभु के साथ निवास That's why he करेगा। was taking the time to, he was seeing himself. Centuries, for centuries, they kept this bread aside. But today, it is in the hand of the Lord God Almighty. और इसीलिए वो अपने आप को उस रोटी के अंदर देख रहा था कि सदियों सदियों बीत चुके, ये रोटी अपनी और अपने आप को वो दी और आज वो प्रभु के हाथ में आ गई है। Jesus took the bread, और यीशु ने जैसे उस रोटी को he लिया, broke it, उसे तोड़ा and he gave it to the और disciples. अपने चेलों को दिया। Hallelujah. Hallelujah. What an emotional situation that was. देखिए कैसे भावनात्मक वो कभी था। Jesus is seeing himself. वहाँ यीशु अपने आप को देख रहा Jesus is है seeing the bread. और यीशु उस रोटी को देख रहा है And he is seeing that moment, what the Father's anger. और देख रहा है वो क्षण को जहाँ पिता का क्रोध भड़क रहा है And he's telling the people, और लोगों से ये कह रहा है, take, eat. लो इसे तुम खाओ, It is for you ये तुम्हारे लिए है to inherit the eternal life. ताकि तुम अनादिकाल के जीवन को प्राप्त कर It was सको। not so easy for Jesus. यीशु के लिए ये बात कोई आसान In नहीं John थी।
1:29 the Bible says, और यूहन्ना की पुस्तक 1:29 में बाइबल कहती है, John the Baptist saw Jesus coming to the Jordan. और यरदन नदी पे यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु को जब आते हुए He said, देखा, behold the Lamb of उसने God. कहा, देखो ये है परमेश्वर का मेमना, Behold the Lamb of God taken away the sins of the whole world. और ये है परमेश्वर का मेमना जो संसार के सारे पापों को ले लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was a perfect sacrifice. और यीशु एक सिद्ध बलिदान थे। He took the entire anger of God, the sin of the whole world upon himself. परमेश्वर के सारे क्रोध को और संसार के सारे पाप को उन्होंने अपने ऊपर ले That's what the लिया। Bible says in Romans chapter 8:1. इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो की पुस्तक 8:1 में, Therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. जो मसीह यीशु के अंदर है उनके ऊपर कोई दोष की भावना नहीं You know, है। that's why many people they call me, Pastor, we are guilty of some past life. इसलिए बहुत लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि पासवान पिछले दिनों के जीवन में मुझे बहुत दोष की भावना I महसूस tell them होती है। always, guilt is the devil's work. और इसलिए मैं कहता हूँ दोष लाना ये शैतान का काम है। Repentance is the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का कार्य पश्चाताप लाना है। Every time Holy Spirit reminds you of past, repent for that sin. और हर बार पवित्र शास्त्र जब आपके बीते पवित्र आत्मा आपको बीते हुए कल की बात बताते हैं उसके लिए आप If पश्चाताप the Holy करें। Spirit reminds you of sin, repent before God. अगर पवित्र आत्मा आपको पाप के बारे में स्मरण कराते हैं तो परमेश्वर के सामने आप पश्चाताप Every time करें। every devil or every demon reminds you of past, और हर एक दुष्ट आत्मा शैतान आपको बीता हुआ कल बताता है devil will tell, और शैतान ऐसे कहता I have your report card of your past. और तेरे बीते हुए कल की सारी जानकारी मेरे हाथ But I में told the है। devil, लेकिन मैंने शैतान से ऐसे कहा I have the report of God, और मेरे पास तो परमेश्वर की the रिपोर्ट plan है। for my future. भविष्य के लिए जो उसकी योजना है In my God's hand have my future. और परमेश्वर के हाथों में ही मेरा भविष्य है। You die with your guilt. तू तो अपने दोष के साथ मर जा You die with my past report और card. मेरे बीते हुए रिपोर्ट कार्ड के साथ तू मर जा। Oh, many people are crying before it. Lord, Lord, I am guilty for what I have done in the past. और बहुत लोग रो के ऐसे कहते प्रभु मुझे क्षमा कर दो जो सारी बीती हुई बातें मैंने पिछले कल My में Bible की says हैं। God has already forgiven your past. लेकिन मेरा बाइबल कहता है तेरे बीते हुए कल को तो प्रभु ने पहले भुला He दिया took His है blood and washed away your past. और अपने लहू को लेके तेरे बीते हुए कल को उसने धो दिया In है। Christ Jesus there is no condemnation. मसीह यीशु के अंदर कोई भी दोष नहीं If है। anybody brings your past report card, he is or she is the devil's reporter. अगर कोई भी पिछले दिनों की कोई रिपोर्ट आपके पास लाता है चाहे पुरुष या स्त्री वो दोनों शैतान की ओर से रिपोर्ट Somebody say आमेन amen. कह सकते Oh, हैं। brother Mario, he was not good. हाँ ये भाई मारियो ये तो अच्छा नहीं I था। want to tell you, your plan for future is in the hands of और God. इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके भविष्य की योजना परमेश्वर के हाथ Oh, में है। brother, he is a worst sinner. अरे ये भाई ये तो बहुत बड़ा पापी है That is a devil's report. और ये तो शैतान की रिपोर्ट है। Devil may have your report card. हो सकता है शैतान के हाथ में आपका रिपोर्ट Why Jesus is having my report card, the future report card in his hands. लेकिन मेरे भविष्य का रिपोर्ट कार्ड मेरे यीशु के हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। Devil plans your past, और शैतान तो पिछले दिनों की योजना आपकी करता but है Jesus plans your future. लेकिन यीशु तो भविष्य की योजना करता Can है। somebody say कोई amen? आमीन कह सकता है। Why Jesus is planning my future. मेरा यीशु मेरे भविष्य की योजना कर रहा No है। matter saints of God, what guilt you're going through, it's God Almighty washes away all your sins. और परमेश्वर के संतोष है किसी भी दोष की भावना से आप क्यों न गुजर रहे हो लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सारे पापों को धो देता है। Hallelujah. हालेलुया। Can somebody say amen? क्या कोई आमीन कह There सकता is है? no condemnation in Christ Jesus. जो मसीह यीशु में उनके लिए कोई दोष की भावना नहीं That's है। what today many people are backslidden. They came to God, they spoke about their past, or they went to guilt, condemnation, and they died. इसीलिए आज बहुत सारे लोग पीछे मुड़ चुके हैं प्रभु में आए अपने दोष के बारे में बताया उस दोष की भावना से गुजर गए And और today, इसी में मर गए। and today we can see the people, the Pharisees and Sadducees. और आज सारे लोगों को हम देख सकते हैं जो फरीसी और